So now let us start. Come to our topic, sets. We'll start with definition of set. What is a set? So a set is a collection of well-defined objects. Students, please see the definition very carefully. The word well-defined. It is not only collection, but collection of well-defined objects. So what does it mean? What is the meaning of well-defined? कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन क्या सेट्स है? नहीं. तो किस टाइप के ऑब्जेक्ट होने चाहिए? वेल डिफाइंड मतलब वेरी क्लियर. आवर विजन शुड बी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, डेफिनेट, और इट शुड बी यूनिवर्सल, सेम फॉर ऑल. सपोज इफ आई आस्क यू what are even numbers? So 2, 4, 6, 8. The answer will be same for all. 2, 4, 6, 8. Now if I ask you the intelligent boy of your class, or which is your favorite teacher, so names will be different. So it is not a set. Now let us discuss some few examples. First one is first 10 counting numbers. Is it a set or not? So first 10 counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It is universal. It is same for all. We are very much clear about it that what are first 10 counting numbers. There is no confusion. So it is a set. Now similarly, days of week, yes, it is also universal. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Months in a year, so it is a set. Yes. Months in a year, yes, it is also universal. It is well defined. We are very much clear. We can write down January, February, March, April, May, June, and so on. Vowels in English alphabet: A, E, I, O, U. There is no confusion. It is universal. It is same for all. So yes, it is also set. Now if I ask you which freedom fighter or which leader you like the most, so names are different. You have to think about it. It differs from person to person. Suppose one student say that it's Gandhi ji, other can say it's Lokmanya Tilak, the third one answer will be different. So is it a set? No, it is not a set. If somebody asks student, teacher, the brilliant student in your class, are same. It differs from subject teacher to subject teacher. हर एक टीचर का आंसर अलग हो सकता है. One student who is brilliant in language, maybe not brilliant in maths, maybe not brilliant in science. So again it is confusion in this. It is not, we cannot answer this definitely, or it is not same for all, so it is not a set. Now if a student is asked to tell his or her favorite teacher, again it is not same for all. Different students will give different answer, so it is also not a set. So sets are denoted by capital letter A, B, C, any alphabet up to Z, but its members we use small letters for them: A, small b, small c, and so on. And elements of sets are always written in curly brackets. This type of bracket. You can see it with example A. Set A I have written. You can see set मैंने लिखा है कैपिटल लेटर का यूज किया है. ये कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे हैं मैंने इसके एलिमेंट्स A, E, I, O, U. कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5. ये है एलिमेंट्स ऑफ A. और A के अंदर कितने एलिमेंट्स है?
5. तो NA का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. It is 5. Now these are the elements. तो A is an element of set A. इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं like this. ये साइन है, this साइन, इसको बोलते हैं belongs to. So A belongs to capital A. A is an element of set A. Now B है इधर, B नहीं है, इसका मतलब B is not an element of A. Like this. This means belongs to and this means does not belongs to. So A belongs to set A, but B does not belongs to set A. What about C, students? Is C is here? No. So C does not belongs to set A. Now we will learn how to write sets, that is methods of writing sets. There are two methods. One is listing or roster method. ये कोई मेथड नया नहीं है, सभी स्टूडेंट्स अपने घर में इसे यूज करते हैं. जैसे मम्मी ने बोला लाना है, क्या क्या लिस्ट बनाते हो ना, अनियन, टोमेटो, पोटैटो, लेडी फिंगर, मार्केट जाने से पहले, तो सेम है ये. तो क्या करते हैं इसमें हम एलिमेंट्स को लिखते हैं, उनको सेपरेट कर देते हैं. किससे? कॉमा से. पहला एलिमेंट कॉमा, दूसरा एलिमेंट कॉमा, तीसरा एलिमेंट कॉमा. और किस में लिखते हैं इसको? कर्ली ब्रैकेट्स में. तो इन दिस ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. पहले अनियन लिखो या टोमेटो लिखो या पोटैटो लिखो, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे. दूसरा, डू नॉट रिपीट. गलती से हो भी गया, 2 बार आ गया पोटैटो, तो लिखना कितनी बार है? एक ही बार. डू नॉट रिपीट द एलिमेंट. राइट एलिमेंट ओनली वंस. सिर्फ एक ही बार लिखना है एक एलिमेंट को. ये बातें ध्यान में रखनी है. लिस्टिंग मेथड में ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसा है वैसा लिख सकते हो. रिपीटिशन नहीं होना चाहिए एलिमेंट्स का. तो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 5. तो कैसे लिखेंगे? पहले सेट का नाम कोई भी A, फिर हम क्या लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट. इवन नंबर्स पता है ना, 2, 4, 6. लेकिन यहाँ 6 नहीं आएगा क्योंकि हमें इवन नंबर्स लिखने हैं 1 to 5. तो 2, 4. अब इधर देखते हैं क्या है सेट 2. सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड इंडिया. इंडिया में जितने भी लेटर्स हैं उन्हें लिखना है. इंडिया में I है, N है, D है, I है, A. लेकिन अभी मैंने बताया डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है. तो I को यहाँ पर हम दोबारा नहीं लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा लिस्टिंग मेथड, जो बहुत ही सिंपल है, जो तुम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हो अपने घरों में. दूसरा मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दैट इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. इसमें हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते, उसकी जगह हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर जनरल फॉर्म में लिखते हैं, जनरल एलिमेंट लिखते हैं. जनरल एलिमेंट मतलब हम x की टर्म्स में लिखते हैं. यहाँ पर हम वेरिएबल यूज करेंगे x, उसके बाद हम कॉलन लगाते हैं या फिर एक वर्टिकल लाइन x, फिर एक वर्टिकल लाइन लगानी है. फिर x की क्या प्रॉपर्टी है वो लिख देनी है. प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल, यूजिंग वेरिएबल
and then you have to write down property of variable. Suppose here, तो x such that, इस वर्टिकल लाइन को रीड करते हैं, such that x is an even number less than 5. So how to read this? Set A is a set of all x. Set A is a set of all x such that x is an even number less than 5. So this is set builder form. इसमें क्या आ जाएगा 2,4. 2,4 लिस्टिंग मेथड है और ये सेट बिल्डर फॉर्म. We'll start practice set 1.1. Question number first. Write in roster form. Roster form means लिस्टिंग मेथड. लिस्टिंग मेथड एकदम सिंपल, एलिमेंट्स को सेपरेट करना है किससे? कॉलम से. तो फर्स्ट इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स. अभी मैंने तुम्हें बताया था इवन नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 2, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. सेकेंड इज set of even prime numbers from 1 to 50. Even prime numbers एक ही है इकलौता, कौन सा है वो? 2, जो even भी है और prime भी. So B में सिर्फ 2 आएगा क्योंकि हमें लिखना है even prime और ऐसा तो सिर्फ एक ही नंबर है और वो है 2. C सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? पहले इंटीजर्स देखो, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. -1, -2, -3 एंड सो ऑन. सो ये तो हो गए 1, 2, 3. ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स. ये क्या है? 0. नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है. तो नेगेटिव क्या हुआ है? जिनमें माइनस साइन आता है. तो क्या लिखेंगे? -1, -2, -3 एंड सो. फोर्थ वन इज साउंड्स ऑफ सरगम. सा, रे, ग, म, प, ध, नी. So these are the 7 sounds of sargam. Now question number 2 is write symbolic statements in words. Verbal form. कैसा लिखेंगे? ये mathematical form में लिखा है, symbolic form में. 4/3. This is the sign belongs to cube. So how to write? 4/3 belongs to means is an element of set Q and here belongs to को कट किया है, मतलब -2 is not an element of set n. -2 नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है और 4/3 रेशनल नंबर का एलिमेंट है. अब ये लिखा है कौन सी फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में. तो कैसे? सेट P is the set of P. अब ये P क्या है? वर्टिकल लाइन को क्या लिखेंगे? such that P is an odd number. Now question number 3 is write any two sets by listing method and by rule method. वो मैं तुम्हें ऊपर दो क्या बहुत से एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, लिस्टिंग मेथड के एंड रूल मेथड. So you can complete question number 3 by yourself. Students, we have come to the last question of this exercise. In this question we have to write set using rule method or we can say set builder form. So let us start with this fourth part first. You can see Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. This is listing method and we have to write this in set builder form or rule method. So how to write? D equals to curly bracket x, then vertical line x.
and after this you have to write the property of this x. D के अंदर x एलिमेंट्स है, वो x एलिमेंट कौन से है, तो क्या है x, उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है. तो x इज अ डे इन अ वीक, हफ्ते के दिन. तो D, set D is a set of x such that x is a day in a week. Similarly, see this one, set x. What is set x? 3 लेटर्स लिखे हैं. ये लेटर से कौन सा वर्ड बनता है, ये लेटर से ईट वर्ड बनता है या फिर टी भी बनता है और कोई दूसरा बनता है तो तुम देख सकते हो. तो सेट x इज अ सेट ऑफ x, एलिमेंट्स x. अब ये क्या है एलिमेंट्स, दीज आर द लेटर्स. किसके लेटर है, वर्ड ईट. ईट में क्या है, ई कॉमा ए कॉमा टी. तो वर्टिकल लाइन के बाद तुम्हें क्या लिखना है, x की प्रॉपर्टी. यहाँ पर x क्या है, दे आर द लेटर्स. किसके लेटर्स, वर्ड ईट में जो भी लेटर्स है वो यहाँ लिखनी. नेक्स्ट इज SMILE, स्माइल वर्ड बनता है. तो हम क्या लिखेंगे, सेट C इज अ सेट ऑफ x सच दैट. ध्यान में रखो, कोई भी सेट लिखना है, इक्वल टू साइन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x, इतना तो फिक्स है. और इसके आगे क्या लिखना है, प्रॉपर्टी और फिर ब्रैकेट क्लोज. तो x सच दैट x. अब ये x क्या है, लेटर ऑफ दिस वर्ड स्माइल. तो x इज अ लेटर इन वर्ड स्माइल. अब ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं, तो देखते हैं इधर, ध्यान से ऑब्जर्व करो. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. कैसे नंबर्स हैं ये है परफेक्ट स्क्वायर. 1 से लेकर कहाँ तक, 100 तक. तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको हम, सेट A is a set of x such that x is a perfect square between 0 and 101. 0 और 10 के बीच पे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है वो लिखने हैं. ये भी राइट है. अदरवाइज मोर मैथमेटिकली यू कैन राइट लाइक दिस, A is a set of x such that x क्या है, स्क्वायर. तो यहाँ लिख दिया n स्क्वायर. और n क्या है यहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर. तो n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10. n नेचुरल नंबर है, 10 या 10 से कम, मतलब n की वैल्यूज क्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और इनका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, इधर 2 रखेंगे 4, 3 रखने पर 9, 4 रखने पर 16 एंड सो ऑन. अब लास्ट वाला देखो, ये वाला B. सेकेंड वन A, 6, 12, 18, 24 क्या है ये सब है 6 के मल्टीपल्स. कितने मल्टीपल्स है, 6 8 are 48. तो ये 8 मल्टीपल्स है. तो इनको हम इजी वे में ऐसा भी लिख सकते हैं, x such that x is a multiple of 6, first 8 multiple of 6. और मैथमेटिकली वी कैन राइट x मल्टीपल लिखना है, 2 का मल्टीपल मतलब 2n, 3 का मल्टीपल 3n, 5 का मल्टीपल 5n, 6 का मल्टीपल 6n. तो x सच दैट x क्या है यहाँ पर, 6 के मल्टीपल्स. तो कैसे लिखेंगे, 6n. अब ये n क्या है, नेचुरल नंबर, और ये कहाँ तक है, 8 तक. तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 8 लेस देन इक्वल टू 8. मतलब n की वैल्यूज क्या होंगी, 1 से लेकर 8 तक. 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1 6, n की जगह 2 लिखेंगे तो 6 इंटू 2 12,
3 लिखने पर 18, 4 लेंगे तो 24 एंड लाइक दिस 8 रखेंगे तो 48. स्टूडेंट्स हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. आई होप दैट यू एंजॉयड माय वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस